Jai Hind students, today we will continue the same topic, that is the noun number. Number, all of you know that noun is its singular and plural. So what do you mean by, how do you know that number is the distinction between nouns expressing one person, place or thing to denotes more than one person, place or things. Means one person singular noun, more than one person, that is plural noun. So we already have discussed how to make singular to plural naturally by adding s. But there are some words where we use es, some words where we will use ies or ves. So we have already discussed about that one. Now I'm just repeating that things. So what we have learned, that the words ends with s, double s, ch or sh or x. Here we use es. We use es. Example ले लेते हैं. Bus, buses. Class, classes. Church, churches. Brush, brushes. Box, boxes. Like this. So some words which ends with o, ends with o. Here also we use es to make it plural. Example: tomato, tomatoes. Potato, potatoes. Like this. Next is the words which ends with y, but before y there is a consonant. Y plus consonant. Consonant, consonant, nant plus y. Example: storage, story, story. Pony, ponies. Next is vowel plus y. The same example we can take: story, stories, storeys. Now you can see the difference between two one, and this will come in examination. But these two words are much more important. You can say here, you can see that before y there is a consonant, but here before y there is a vowel. This is the difference. If y is followed by any vowel, then here we add simply s. Example: key, keys, like this. Now the words which end with f, ef or fe. Here we add ves. Example: thief, thief. Thieves, thives. Thieves. Self, shelf, shelves. Here it ends with the f. Next is half, half, halves. Knife, knife. Here it ends with the fe. So knives, knives.
So some exceptional words are there that we have already discussed, like roof, roofs, hoof, hoofs, chief, chiefs, like this. So to know which are the exceptional words, you have to go to the previous video. Now we will discuss about some more words which has singular, which has singular and plural in both. Singular में भी same words होते हैं, plural में भी same words होते हैं. It depends upon the sentence. Example: dear, some noun. Example ले सकते हैं अपन. Dear, its plural is also dear. Next is she. she, its plural is also she. Fish, its plural is also fish. Like dozen, dozen, its plural is also dozen. Fruit, fruit, its plural is also. Now you can see that in some places we also see es, like कहीं कहीं पर हमको एफ एस आई एस एच ई एस देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एफ आर यू आई टी एस देखने को मिलते हैं. बोथ आर राइट. इफ स्पीसीज मींस फिश की अगर सेम स्पीसीज है तो उसकी जो प्लूरल होगा वो हो जाएगा फिश, अगर स्पीसीज सेम है तो. लाइक दिस फ्रूट की भी अगर सेम फ्रूट है, उसकी वैरायटी ऑफ फ्रूट नहीं है, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स. अगर अलग अलग इस सपोज देयर इज एक कोई बास्केट है, उसमें अगर अलग अलग टाइप के फ्रूट्स रखे हुए हैं तो फ्रूट्स हो जाएगा. लेकिन अगर वो सेम काइंड के फ्रूट है, सेम काइंड के फ्रूट अगर बहुत सारा है तो उसमें फ्रूट. यू हैव टू, मतलब इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम काइंड की बहुत सारी एक फ्रूट है तो फ्रूट ही होगा. लेकिन अगर वैरायटी ऑफ फ्रूट है तो फ्रूट्स हो जाता है. वैसे ही फिश की भी अगर सेम स्पीसीज है तो फिश, और अगर अलग अलग स्पीसीज है तो फिशेस. वैसे फ्लावर का होता है, फ्लावर्स अगर सेम स्पीसीज है तो फ्लावर, नहीं तो अगर अलग अलग स्पीसीज है तो फ्लावर. तो जनरली हम लोग अलग अलग, जैसे बुके वगैरह उससे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं, तो जनरली वी यूज टर्म फ्लावर्स. लेकिन अगर सेम ही है तो फ्लावर. नेक्स्ट इज some of nouns are always used with expression of pair because कुछ जो होते हैं वो सिर्फ पेयर में ही आते हैं. एग्जाम्पल, पेयर में ही आए, एक्सप्रेशन विथ पेयर. एक्सप्रेशन विथ पेयर, जैसे कि अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर ऑफ trousers. We cannot say trouser, that is trousers. अगर हम करते हैं trouser, it's wrong. trousers, कभी भी वो trouser क्या बोलते हैं, वो trousers जो है वो trouser नहीं होता है, trousers ही होते हैं. इसमें प्लूरल ही होता है हमेशा, दिखता भी प्लूरल है और है भी प्लूरल. jeans, a pair of jeans, a pair of jeans, a pair of glasses, a pair of slippers. कभी भी स्लीपर नहीं होता है, दैट इज स्लीपर्स. नेक्स्ट इज पेयर ऑफ gloves, a pair of gloves. Next is a pair of earrings, a pair of earrings. ये कभी भी जो दिखता भी प्लूरल है और है भी प्लूरल है. इसमें प्लूरल नहीं हम इसको यूज करते हैं, कभी भी हम बिना एस के यूज नहीं करते हैं. मतलब हमको जब भी ट्राउजर है, दैट इज ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स. जीन्स, जीन तो बोलते भी नहीं, जीन्स. ग्लासेस, स्लीपर्स, ग्लोव्स, इयररिंग्स.
इस तरीके से इसको बोला जाता है। मतलब ये दिखता भी प्लूरल है और है भी प्लूरल, लेकिन आप इसके प्रीवियस में अगर जाकर के देखेंगे, प्रीवियस में अगर जाकर के अगर देखते हैं प्रीवियस में, तो ये देखो ये दिख रहा है इसका स्लीप डियर डियर, शीप शीप, फिश फिश, डजन डजन, फ्रूट फ्रूट। तो इसके आप प्लूरल को देखिए, विदाउट एस बट इट इज ए प्लूरल, बिना एस का है लेकिन ये प्लूरल है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दिखता सिंगुलर है लेकिन है प्लूरल। नेक्स्ट प्लीज, कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं। These foreign words are plural form of some foreign words. These are also much more important. यहाँ पर जो है प्लूरल जो फॉरेन कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं उसके जो प्लूरल हैं वो भी बिल्कुल अलग टाइप के बनते हैं, इसमें कोई रूल्स जो है वो काम नहीं करता है। अलग वर्ड्स के लिए अलग टाइप के प्लूरल बनते हैं, जैसे कि एग्जिस, इसका बन जाएगा एग्जिस। बेसिस, बेसिस। नेक्स्ट इज मीडियम, मीडिया। नेक्स्ट इज ओएसिस, ओएसिस। रेडियस, रेडियाई, डी आई आई, रेडियाई। नेक्स्ट इज सिलेबस, सिलेबी, सिलेबस, सिलेबी। नेक्स्ट इज फॉर्मूला, फॉर्मूले। नेक्स्ट इज फिनोमेनन, फिनोमेना, फिनोमेनन, फिनोमेना। सिलेबस, सिलेबी, सिलेबस इज सिलेबी, इट्स ऑलरेडी written। तो देखो कुछ फॉरेन वर्ड्स है। फॉरेन वर्ड्स मतलब ये फॉरेन जो इंग्लैंड में है वहाँ पे जो भी बाहर के भी स्पीकर्स, वहाँ पर बाहर के भी जो लोग हैं, बाहर के जो कंट्री के लोग हैं, वहाँ पर वो आकर के वहाँ पर बस गए, उनकी जो बोलचाल में थी उसको वहाँ पर वो, जैसे कि कोई भी बोलचाल में अगर वो बहुत वर्ड जो है वो कंटिन्यू सारे लोग उसको यूज करने लगते हैं, तो उस वर्ड को भी उस कंट्री के जो वर्ड लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, जो इंग्लिश में उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, इसलिए इसको फॉरेन वर्ड्स कहा गया है कि ये फॉरेन कंट्री की, जिसकी कोई लैटिन लैंग्वेज होगा, कोई अरबिक होगा, कुछ और होगा, तो वहाँ पर वो लोग उसको कंटिन्यू यूज करने लगे, तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट में वो प्रिवेल हो गया, तो जिसके कारण कि इस वर्ड्स का यूज जो है वो होने लगा, तो इसको फॉरेन वर्ड्स कहा जाता है। तो देखो एक्सिस का एक्सिस, बेसिस का बेसिस, मीडियम का मीडिया, ओएसिस का ओएसिस, रेडियस का रेडियस, सिलेबस का सिलेबी, फार्मूला का फार्मूले, फिनोमिनन का फिनोमिना। सो दीज आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं जिससे कि हम नाउन से हम प्रोनाउन यहाँ पर बनाना सीखे हैं। अब हम देखेंगे कि हमको कितना हम लोग अभी तक सीख पाए हैं। जैसे ट्री है, टी आर ई ई, हाउ विल मेक इट प्लूरल, ट्रीज। बॉक्स है तो boxes, but ox है तो oxen, but because these are the exceptional words, so you have to remember this, इसको कोई ऑप्शन ही नहीं है,
एक्सेप्ट रिमेम्बरिंग। तो आपको इस तरह के वर्ड जो हो रिमेम्बर ही करने पड़ेंगे। अगर चर्च है CHURCH, क्या हो जाएगा ये चर्चिस, CHURCHES। वैसे ही अगर फैमिली है, फैमिली क्या हो जाएगा फैमिलीज, IES, FAMILIES। मंकी, MONKEY। Can you make it monkeys? MONKIES? No. Why? Because before Y there is a vowel. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये monkeys, KEYS। सिमिलरली एक और लेते हैं यहाँ पर स्टोरी, स्टोरी ये बहुत बार जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है। STOREY, स्टोरी दे दिया जाएगा या फ्री वाली स्टोरी दे दिया जाएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर आएगा STORIES और हियर STOREYS। सम मोर एग्जांपल्स, मस्कीटो, मस्कीटो ले लेते हैं। इसका कैसे बनेगा मस्कीटो, MOSQUITOES। नेक्स्ट है आपका उल्फ, LM, इसका कैसे बनेगा WLVES। नेक्स्ट इज माउस, इसका प्लूरल बनाना है तो माइस। ये कौन से हैं तो जो रैंडमली बनते हैं, इरेगुलर वर्ड, वॉवेल को जो चेंज करके बनाया जाता है, ये उस टाइप के वर्ड्स हैं। माउस का क्या हो जाएगा माइस। शीप का व्हाट विल बी इट्स प्लूरल, क्या होगा इसका शीप। देयर इज नो चेंजेस इन दिस वर्ड, व्हाई बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी रीड दैट शीप की जो प्लूरल है वो शीप ही होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। एग्जांपल फिश, तो फिश इज डिपेंड अपॉन द सेंटेंसेस आल्सो। सपोज इसने पैसेज में दे दिया है वैरायटी ऑफ फिश, अगर दिया हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पर पूछा है पैसेज है ये, और उसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें लिखा गया है कि एक बच्चा है, सपोज वन बॉय इज देयर एंड ही वेंट टू द river and he catches variety of fish, he saw many variety of fishes and he catch this one, ऐसे करके। तो वहां पर अगर वैरायटी ऑफ दिया है नेचुरली वहां पर फिशेस ही होगा, फिश नहीं होगा। लेकिन जब वन सिंगल स्पेसीज के बारे में बात हो रही है तो फिश का प्लूरल जो हो फिश ही होता है। नेक्स्ट और ले लेते हैं पियानो, पियानो का क्या हो जाएगा पियानो। देयर इज नो चेंजेस इन दिस, सिंपल हम उसको करेंगे एस। नेक्स्ट इज लेच, LATCH, इसका क्या हो जाएगा लेचिस, LATCHES। वैसे ही मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट, इससे पता चल रहा है कि सबसे आपको देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है। इससे आपको सर्वेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको लेना देना है इस मेन से कि वो मेन सर्वेंट है कि वुमेन सर्वेंट है। सर्वेंट तो पर वो मेन है कि वुमेन है, दो टाइप के सर्वेंट हो सकते हैं। तो इस स्थिति पे ये जो है वो प्रिंसिपल वर्ब का रूप काम करता है। ऐसे दोनों ही नाउन है, मेन भी नाउन है सर्वेंट भी नाउन है, लेकिन प्रिंसिपल नाउन में जो है कौन सा है यहाँ पर मेन आएगा। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सॉरी इसका जो प्लूरल होगा वो MEN होगा, मेन सर्वेंट। अगर कहीं पर दोनों के दोनों ही प्रिंसिपल है तो वहां पर फिर क्या बोलते हैं दोनों में ऐसे रखते हैं, जैसे कि लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस।
लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड भी ये है, इसमें हो जाता है लॉर्ड्स जस्टिसेस ऐसे। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्या बोलते हैं वर्ड के ऊपर। अगर उसमें दिख रहा है जैसे कि गार्डन स्नेक है, एक ले लेते हैं गार्डन, GARDEN, गार्डन स्नेक, गार्डन में स्नेक, ठीक है। अब इसका प्लूरल जब बनाना होगा तो हमको गार्डन से तो कोई लेना देना नहीं कि बहुत सारे गार्डन बहुत सारे स्नेक तो नहीं हो सकता। गार्डन स्नेक्स, देयर आर सो मेनी snakes in the garden, or there are these are the garden snakes, garden, GARDENSNEKES। तो यहाँ पर भले गार्डन भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो गार्डन जो है यहाँ पर एज ए आपको देखना है कि कौन सा जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा जो है मेन रूप में यहाँ पर लिखा गया है। नेचुरली स्नेक, क्योंकि गार्डन जो है ऐसे तो नहीं हो सकते कि बहुत सारा गार्डन और बहुत सारे स्नेक, ऐसे तो नहीं हो सकते। अगर बोलेंगे तो गार्डन में बहुत सारे स्नेक्स, गार्डन में क्या है बहुत सारे स्नेक है, बहुत सारे सांप है, तो ये कैसे हो जाएगा गार्डन स्नेक्स। तो ये आपको देखना है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा मेन वर्ड है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आपको उस समय समझना रहेगा कि दोनों अगर प्रिंसिपल है, दोनों मेन है, तो दोनों में हम ऐसे लगाते हैं, नहीं तो फिर एक जो लास्ट रहता है जो मेन होता है, चाहे वो लास्ट में हो स्टार्टिंग हो, जैसे कि इसमें ये स्टार्टिंग में था तो इसका प्लूरल हो गया एम ही है, लेकिन यहाँ पर देखो ये मेन है, स्नेक मैन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो सांप है, तो उस जगह पर हम स्नेक में प्लूरल लगाते हैं।